सो आई हैव जस्ट बीन टोल्ड कि हमारा टाइम कुछ बदला है और ये है कि जस्ट बीन टोल्ड कि I should be finishing by 10:35 instead of 10:45. ठीक है, तो उसमें ये हम करेंगे कि हम थोड़ी सी स्पीड तेज रखेंगे. आप लोग काइंडली बिल्कुल अलर्ट रहोगे और हम तेजी से चलेंगे बिकॉज लेक्चर आज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो स्टार्टिंग ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. We'll be starting off with the second chapter of heart, the second lecture of heart, and I hope that you are studying and covering it because इसके बाद हमने assessments भी लेनी है और किसी भी टाइम पे आपको पता है कभी यूएचएस इस तरह अनाउंस कर देती है तो आपका एग्जाम किसी भी मेथड से हो सकता है. So be on your toes, stay alert. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with last time's questions. I got one question about the location of edema was it dependent on the posture? Was the edema of congestive heart failure dependent on posture or not? I think we discussed it in this slide that peripheral edema of dependent portion of the body, it has to be the dependent portion because most people are ambulatory, they're moving around, so they get this edema in the ankle and pretracheal area. And this is the hallmark of right heart failure. And in chronically bedridden patients, the edema may be presacral. ठीक है, so लेटे हुए पेशेंट को आपका एडमिटेड पेशेंट है और बेडरिडन है तो उसमें आपने पाँव में नहीं ढूंढना है एडिमा, उसमें आपने प्रीसेक्रल एरिया को प्रेस करके फिटिंग एडिमा ढूंढना है. ठीक है, so this was regarding the question that I got. Now we'll be starting off with ischemic heart disease. ठीक है बच्चों, अब ये आपको क्वेश्चन से कुछ अंदाजा होगा कि ये बहुत ज्यादा इसमें से सवाल आते हैं. ठीक है, like for example this one, here they are talking about the morphological changes in MI and lab evaluation. This one is asking you about which area of the heart is most likely to show the lesion. They have told you कि occlusion left anterior descending की है, तो फिर आप बताएं कि कौन सा एरिया affected होगा. This is your anatomy, applied anatomy, and again morphological changes and 4 complications of an MI. This one is again talking about an MI, and they are saying they have told you the site of the infarct. They're asking you which artery was stenosed and what must have been the duration. Again वो morphological changes का एक table आएगा, उसमें से बार-बार ही आ रहा है, and complications of an MI. This one is again asking you about a post-MI situation in an autopsy where you get collagen deposition without granulation tissue. ठीक है, this is telling you from your third year knowledge कि it's an old lesion. ठीक है, इसका एक टेबल आएगा, हम उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे. देखो बहुत सारे सवाल उसमें से आ रहे हैं. यूजिंग morphology, it is all out of that table. और what is the minimum length of time पूछी हुई है और gross or microscopic features at 8 hours and at 10 days of age पूछा हुआ है. So starting off with this ischemia. Ischemia is a term that I'm sure you are all familiar with, but let's look at the root of this word. Where does this word come from? It comes from which means to keep back. Ischemia, blood is entering. So in medical terms, an insufficient supply of blood artery. There are other causes when there is insufficient supply of blood. अब ये synonymous है with an insufficient supply of blood. ठीक है, so ischemia से हम यही मुराद लेंगे, usually due to a blocked artery, लेकिन there are other causes also. Now, myocardial ischemia, जो उसकी हम आज बात कर रहे हैं, it is an imbalance between cardiac blood supply and its oxygen and nutritional requirements. ठीक है, हार्ट को जितनी blood supply चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है. This is ischemia for whatever reason. ठीक है, reasons हम अभी डिस्कस कर लेंगे, उसमें भी आपने अलर्टली सुनना है कि reasons में क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है जब आपसे रीजन को पूछे.
etiology of ischemia in 90% of the cases, please wake up, 90% of the cases, etiology is going to be a consequence of reduced coronary blood flow secondary to obstructive atherosclerotic vascular disease. Kindly take note. 90% of the cases, it is due to an obstructive atherosclerotic vascular disease. As you can see in the diagram that has popped up, आप देख सकते हो इस आर्टरी के ल्यूमन का क्या हाल है, तो यकीनन इसके जो ड्रेनेज एरिया है वो अफेक्टेड होगा. सो इस्कीमिया in general terms is synonymous with atherosclerotic disease, but as doctors must know, there are other rarer factors. Ischemia, think myocardium especially, think ischemia, think atherosclerosis. इसको नहीं भूलना. पहले आपके ज़हन में सबसे बड़ी बत्ती ये जलनी चाहिए, फिर छोटी-छोटी और लाइटें जलेंगी. ठीक है? What are some other causes that I keep referring to? One is increased demand. ठीक है? ब्लड सप्लाई कम है, लिमिटेड है, अगर बहुत कम अभी नहीं हुई, लेकिन पेशेंट पे कोई इंक्रीज्ड हार्ट पे डिमांड आ गई, तो वही जो कि अभी काम चल रहा था वो चीज अनमास्क हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी. ठीक है? अंडरलाइन पैथोलॉजी जो कि गुजारा कर रही थी, गुजारे से भी जाएगा काम, तो ऑब्वियस हो जाएगी. ठीक है? इंक्रीज डिमांड क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, कोई स्ट्रेस आ गया, कोई शॉक मिल गया, कोई तकलीफ पहुंच गई, कोई बुखार हो गया. ठीक है? ये सब चीजें अनमास्क कर देंगी एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस को, जो कि अदरवाइज अभी क्लिनिकली मैनिफेस्ट नहीं हुआ था. क्योंकि क्लिनिकली मैनिफेस्ट ये तब होता है जब एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाए, अभी हम डिस्कस करते हैं. बट नो कि 5% ब्लॉकेज जो है वो कहीं भी मैनिफेस्ट नहीं होगी. ठीक है? एटलीस्ट 70% ब्लॉकेज हो जाए तो ये क्लिनिकली मैनिफेस्ट होता है पेशेंट. अल्लाह पाक ने इतना रिजर्व रखा है हार्ट की वेसल्स में कि वो ब्लॉक होती जाए, इनफ ब्लड सप्लाई रहती है, हार्ट अपना काम करता रहता है. जब ये 70% का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए तो क्लिनिकली मैनिफेस्ट होता है, विच इन अ वे इज अ वेरी गुड थिंग, बट देयर इज अ डाउन साइड एज वेल. डाउन साइड इसकी ये है कि बहुत से पेशेंट जो आपको एसिम्प्टोमेटिक को कोई तकलीफ नहीं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हुई भी होती है. ठीक है? और वो सडनली या तो कोई थ्रोम्बोटिक इवेंट उसके ऊपर हो जाता है, जैसे हमने अनस्टेबल प्लेक्स पढ़ी थी, उनको जो वल्नरेबल प्लेक्स पढ़े थे, तो कवर ऊपर का छोटा हो तो वो किसी वजह से थ्रोम्बोसिस हो गया तो प्रेजेंट कर जाएंगे. और या फिर ये जो फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, ये अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक साइलेंट किस्म के एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रोमिनेंट कर देंगे. सो थिंक इस्कीमिया, थिंक एथेरोस्क्लेरोसिस, बट थिंक ऑफ दीज माइनर थिंग्स एज वेल. ठीक है? So increased demand is one thing that is going to uncover and otherwise subclinical atherosclerosis. Then diminished blood volume. किसी भी वजह से blood volume कम हो गया, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी थोड़ी ब्लीडिंग हो गई, उसको पता ही नहीं कि मुझे हार्ट ट्रबल भी है, साथ उसको चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा. ठीक है? वो क्यों शुरू हो गया? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही थी, आर्टरी नैरो हो रही थी, लेकिन अभी तक हमारा उसका काम चल रहा था. अब हेमरेज की वजह से ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई. ठीक है? उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो अनमास्क हो जाएगा. फर्स्ट टाइम दे मे प्रेजेंट आफ्टर एंड फॉर एग्जाम्पल any episode leading to blood volume, or for example an accident or a blood donation. ठीक है? डिमिनिश्ड ऑक्सीजन. ठीक है? किसी ब्लड की ऑक्सीजनेशन पुअर हो गई है, निमोनिया के पेशेंट्स में कहीं आग लगी, सफोकेशन हो गई, तो वो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट कर देगा, क्योंकि उसको अभी पता ही नहीं था अदरवाइज. और बास केसेस में सब क्लिनिकल भी चल रहा होता है, पेशेंट को क्लिनिकली भी थोड़ा सा पता होता है, कभी कभार मैं बहुत चलूं तो मुझे चेस्ट पेन होता है, लेकिन इन चीज को एकदम सडनली प्रेजेंट कर जाता है. डिमिनिश ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. ठीक है? अनीमिया हो गया, पेशेंट को हेमरोइड्स थे, या कोलन कहीं डेवलप हो गया, या कोई पेप्टिक अल्सर बन गया, वो अंदर अंदर ब्लीडिंग होती जा रही है, अनीमिया डेवलप हो गया, तो भी सब क्लिनिकल एथेरोस्क्लेरोसिस मैनिफेस्ट हो जाएगी एज इस्कीमिया. ठीक है? जब इस्कीमिया हो जाता है, कार्डियक इस्कीमिया, हमने देख लिया क्यों होता है, तो ये कैसे प्रेजेंट करेगा? ये मल्टीपल तरह से प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द डिग्री एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. तो ये क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसके जो प्रेजेंटेशन के ग्रुप्स बना दिए हैं, और उनको हम कहते हैं कार्डियक सिंड्रोम्स. ठीक है? बी वेरी वेरी क्लियर ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस. बी वेरी वेरी क्लियर. First, angina pectoris. Literally meaning chest pain. From the Greek word angon, which means strangling. होता है कि मेरा
तो उसी से वर्ड निकला एंजाइना, ठीक है। ये बेसिकली एंजाइना अब हम हार्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। So this is basically due to an ischemia which induces pain but is insufficient to cause myocyte death. Please be very clear on this. इस्कीमिया हो रहा है लेकिन अभी इतना नहीं है कि मायोसाइट डेथ हो जाए, सिर्फ पेन की तरह प्रेजेंट करेगा, रिवर्सिबल है, आप ट्रीट कर लें, एड्रेस कर लें तो ठीक हो जाएगा मरीज, ठीक है। कोई मायोकार्डियल डैमेज नहीं होगा एंजाइना में, ठीक है। जबकि अगर ये ज्यादा हो जाए और इन्फेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, टिश्यू नेक्रोसिस का लफ्ज आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर हम उसको कहेंगे जब टिश्यू का नेक्रोसिस शुरू हो जाए मायोकार्डियम का, तो हम इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहेंगे। Where the severity or duration of ischemia is enough to cause cardiomyocyte death. जब सेल डेथ आ जाए तो इन्फेक्शन, जब तक ना आए तो एंजाइना, ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन काइंडली नहीं होना चाहिए। Then ischemia can also present very dramatically and sometimes very slowly, ठीक है। स्लोली में आएगा ये chronic ischemic heart disease with congestive heart failure, कि पेशेंट को स्लो हो रही है और एकदम सडन अटैक के साथ प्रेजेंट नहीं हुआ, बल्कि ग्रेजुअली एंड स्लोली ओवर मंथ्स एंड इयर्स ये डेवलप हुई है। इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड स्मॉल इस्केमिक इंसल्ट्स, ठीक है। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता वेसल्स बंद हो रही हैं, उससे क्रॉनिक किस्म का डैमेज आ रहा है। दिस प्रोग्रेसिव कार्डियक डिकॉम्पेंसेशन, पेशेंट को एमआई की कोई हिस्ट्री नहीं होगी, ना आपको ईसीजी पे चेंजेस मिलेंगे, हो सकता है वो चेस्ट पेन की भी दे या ना दे, लेकिन जब आप उसको, आपके पास पाँव की स्वेलिंग के साथ फॉर एग्जांपल आता है और आप वर्कअप करते हो, तो आपको पता चलता है कि देयर हैज बीन प्रोग्रेसिव कार्डियक डिकॉम्पेंसेशन एंड देयर इज इवेंचुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ मैकेनिकल पंप फेलियर। हार्ट को छोटी छोटी चोटें लगती रही, छोटा छोटा डैमेज होता रहा एक्सक्यूज मी, तो होते होते वो इट रिजल्टेड इन अ क्रोनिक फेलियर, जो हमने टर्म पिछली अच्छी तरह पढ़ ली। Then dramatic की हम बात करें, it can also present with sudden cardiac death. This can occur as a consequence of tissue damage from an MI also, but most commonly results from a lethal arrhythmia without myocyte necrosis, ठीक है। Severe atherosclerotic event हुआ, उसमें MI हुआ या नहीं हुआ, arrhythmia set in हो गया with or without infarction, तो पेशेंट कैन सडनली पॉप ऑफ। वो जो आप सुनते हो ना कि जी सडन खबर आई और वो एकदम उसकी डेथ हो गई, तो अमूमन बेसलाइन एथेरोस्क्लेरोसिस चल रहा होता है और पेशेंट एरिथमिया में जाता है, जो सेकंड्स टू मिनट्स में बैठे बैठे लोग करते हैं, तो उसका मैकेनिज्म हमेशा एरिथमिया होगा, याद रखना। इट मे और मे नॉट बी अकम्पनीड बाय एन इन्फेक्शन, ठीक है। तो सडन कार्डियक डेथ इज मे आल्सो बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक इस्कीमिया। There are other deaths of sudden cardiac death, लेकिन वो हम देख लेंगे, other reasons also, लेकिन ischemia is the baseline for most of them. तो आपके रॉबिन्स का मैंने फॉलो किया 1, 2, 3, 4, उसमें से जो 1, 2 and 4 है ना बच्चों, वो एक्यूट है, किसी वजह से थर्ड पे उसने क्रॉनिक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो तीनों एक्यूटली प्रेजेंटिंग है ना, इनको मिला के हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का लफ्ज भी यूज करते हैं। अगर आपको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के नाम से आए तो रिमेंबर द 3 एक्यूट कंडीशंस, एंजाइना, इंफाक्शन एंड सडन डेथ, ठीक। दीज आर टुगेदर टर्म्ड एज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. Be very clear on this also, please. Now, how does it happen? What is the pathogenesis of this imbalance? Primarily a consequence of inadequate coronary perfusion relative to the demand. Obviously, सारी जो ischemias हैं इसी तरह होते हैं, imbalance की demand ज़्यादा है और perfusion कम है. This imbalance occurs as a consequence of combination of a pre-existing or a fixed, ठीक है। जब आपको fixed occlusion का लॉस बोलेगा तो आप समझ जाना कि वो एथेरोस्क्लेरोसिस की बात है, जो कि हर वक्त उस जगह मौजूद है, गायब नहीं हो सकती. Compare it and contrast it with that of a spasm जो कि reversible है, it is not fixed, ठीक है। हमने spasm बार बार पढ़ लिया है coronary vessel का, that is not a fixed obstruction, it is a variable, it comes and goes, ठीक है। तो ये फर्क है fixed और non fixed में, ठीक है। When they ask you about a fixed occlusion, they are talking about atherosclerosis, remember. So the imbalance occurs as a consequence of the combination of pre-existing fixed atherosclerotic occlusion of coronary arteries and a new
सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस, ठीक है, एक बेसलाइन चल रहा था और कोई एक्यूट जब प्रेजेंट होगा तो ऊपर कोई ना कोई नया इवेंट हुआ है, which can be a thrombosis जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, or it may be a vasospasm which can occur in patient with atherosclerosis. You can have two as well. Baseline atherosclerosis थी, irritation थी, हमने डिस्कस किया था, और उसके ऊपर से vasospasm हो सकता है, तो सडन प्रेजेंट कर सकता है, और अदर फैक्टर्स जो हमने ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वगैरह वगैरह देखे थे, इंक्रीज डिमांड, ठीक है। तो ये सारे फिक्स्ड ऑक्लूजन के ऊपर प्रेजेंट मोस्ट कॉमनली होता है कि फिक्स्ड ऑक्लूजन एक चल रही। Can you hear me now? I think there was a problem and we got disconnected. Okay, okay. So we go on. It somehow got disconnected. And where were we? We were here. Okay. So back online. एक तो पहले हमारा टाइम काम में जी, ऊपर से हमारे यहाँ इंटरप्शंस भी आनी शुरू हो गई. ओके, डू आई हैव अ मैसेज हियर? ओके 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 ओके. सो जी बैक टू वर्क, ठीक है. तो ये अब आपको समझ आ गया है इस्कीमिया. प्लीज 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 बी वेरी क्लियर ऑन द रोल ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन इस्कीमिया. ओके, अब तो हम आगे क्रिटिकल सिनोसिस, जिसका थोड़ा सा हमने बात की कि हमने कहा कि अल्लाह ने इतना रिजर्व रखा है कार्डियक वेसल में, बिकॉज इट इज अ वाइटल ऑर्गन, कि थोड़ी बहुत ऑक्लूजन जो है 5, 10, 15% तक कोई इतना इफेक्ट नहीं डालती. देयर इज एडिक्वेट ब्लड सप्लाई. लेकिन होते होते एक टाइम आ जाता है कि एडिक्वेट हो जाती है फॉर इट टू प्रेजेंट क्लिनिकली. उस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल स्टेनोसिस. जब ये क्लिनिकली प्रेजेंट कर जाए, स्टेनोसिस इतना ज्यादा हो जाए कि ये शुरू हो जाए, ठीक है. Obstructions that occlude less than 70% of a vessel lumen typically are asymptomatic. ये हमने डिस्कस किया. Even with exertion, ठीक है, 70% मीन्स कि 2/3 तक वेसल ब्लॉक्ड हो जाए और सिर्फ 1/3 खुला हुआ हो, सिर्फ 1/3 सप्लाई आ रही हो, तो हार्ट इज सो रिच इन ब्लड वेसल्स कि उसको उसका फंक्शन मुतासर नहीं होता, ठीक है. तो इवन एक्सर्शन पेशेंट चलता फिरता भागता दौड़ता ओके होता है, ठीक है. In comparison, lesions that occlude more than 70% of a vessel lumen, they generally cause symptoms in the setting of increased demand. ठीक है, वो भी बेसलाइन पे नहीं, रेस्ट पे. जब जरूरत पड़ेगी पेशेंट भागेगा तो वो कहेगा मुझे तो चेस्ट पेन हो रहा है. परेशानी आएगी, कहेगा जब मैं मुझे कोई बुरी खबर आती मेरे चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, ठीक है. और such stenosis may cause stable angina, ठीक है. स्टेबल एंजाइना हम अभी देख लेते हैं कि क्या है. तो रिमेंबर क्रिटिकल स्टेनोसिस 70% का वर्ड याद रखना है वाइवास के लिए कि इससे नीचे पे अक्सर पेशेंट्स प्रेजेंट ही नहीं करते अनलेस के सुपर एडेड कोई और चीज, ठीक है. 70% critical stenosis, 70% obstruction leads to critical stenosis. What is critical stenosis? When there's a 70% blockage. But remember, this is alarming in the sense कि इसका मतलब 70% से नीचे 50%, 55% तक पेशेंट की ब्लॉकेज हो सकती है विदाउट हिम और हर रियलाइजिंग एनीथिंग इज रॉन्ग, ठीक है. सो इसलिए बहुत से पेशेंट्स आप सुनते हो कि फर्स्ट टाइम मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ ही प्रेजेंट किए या खुदा न करे डेथ के साथ प्रेजेंट किए. उनमें बेसलाइन अंदर अंदर चल रही थी लेकिन उन्हें पता नहीं था क्योंकि वो 70% तक साइलेंट होती है. और अगर और ज्यादा हो जाए, स्टेनोसिस that occludes 90% or more of a vascular lumen can give rise to symptoms even at rest. जब भी होते होते 90% ब्लॉक रह जाए और हो जाए और सिर्फ 10% सप्लाई हार्ट को मिल रही हो,
तो ऐसे पेशेंट्स रेस्ट पे भी कंप्लेन करेंगे एंजाइना की, जो कैटेगरीज अभी हम देख लेंगे, काइंडली रिमेंबर दिस, उसमें से हम जल्दी गुजरेंगे, ठीक है। फिर एक टर्म कोलेटरल परफ्यूजन आपने पढ़ी होगी। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स may occlude an artery at a slow rate over years, आहिस्ता आहिस्ता. This gives them time for remodeling of surrounding coronary vessels, which may provide compensatory blood flow. ठीक है, एक वेसल ब्लॉक होती जाती है, लेकिन क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली हो रही है, ऊपर सुपर इम्पोज बड़ा इवेंट कोई नहीं आया, तो इर्द गिर्द की वेसल अपनी सप्लाई, आपको पता है इस तरह नेचर में सिस्टम में बढ़ा लेती है, ठीक है। This can protect against an MI even if the vessel is eventually completely occluded, ठीक है, क्योंकि कोलेटरल्स अच्छे बन चुके हैं। ये उन लोगों में है जिसमें एक्यूट इवेंट कोई ना हो, स्लोली बैकग्राउंड में एथेरोस्क्लेरोसिस चलती जाए एक वेसल की, और सराउंडिंग को टाइम मिल जाए टू डेवलप कोलेटरल्स। With acute coronary blockage, there is no time for collateral flow to develop and infarction is more likely, ठीक है। इसलिए बहुत से लोग कोई पेन वगैरह की हिस्ट्री नहीं देंगे, फर्स्ट टाइम इन्फॉर्क्शन के साथ ही प्रेजेंट करेंगे, और वो जो है ज्यादा डेंजरस होगा क्योंकि उनके कोलेटरल्स पुअर होंगे, ठीक है। जो इन्फॉर्क्शन के साथ प्रेजेंट करे विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ पेन, उनके अमूमन कोलेटरल्स इतने नहीं बने होते हैं। जो काफी अरसे से पेन में आ रहे होते हैं, उनके कोलेटरल्स बेहतर डेवलप। Then there's a term called acute plaque change, हमने बहुत सारा पढ़ ली थी, हम रिपीट कर लेते हैं। In most patients, unstable angina, infarction and sudden cardiac death, यानी कि हमारा acute coronary syndrome, occur because of an abrupt plaque change followed by thrombosis. ये हमने देखा था क्यों होता है। There may be rupture, erosion or hemorrhage into the atheroma. All of these typically trigger a thrombosis, जिसकी वजह से vessel suddenly फिर block हो जाती है। Now, angina का हमने काफी सारा डिस्कस कर लिया. Let's look at it in a little bit more detail. By definition, it is an intermittent chest pain caused by transient reversible myocardial ischemia. ठीक है? An intermittent chest pain caused by transient reversible myocardial ischemia. This is a transparency in a different color, so you know what to do with it. You need to pay more attention to it and remember it for your exam. Then, बहुत प्यारे बच्चे ने बहुत प्यारा सवाल किया है, विच आई विल रेफर टू द वेरी प्यारी सिया, जिसको कि हम अगली क्लास में प्यार से डिस्कस कर लेंगे काइंडली, ठीक है। अभी हमारी टाइम वैसे ही शॉर्ट है ना। somebody has raised their hand as well. बेटा जरूर आप ना काइंडली उसको हमारी जो सियान है ना उनको पोस्ट कर दीजिए। एंजाइना की कैटेगरीज को ध्यान से सुनो बच्चों। एक तो आता है इसमें पहली कैटेगरी टिपिकल और स्टेबल एंजाइना। दिस इज प्रेडिक्टेबल एपिसोडिक चेस्ट पेन। पेशेंट को आपको खुद आके बताएगा कि जी मैं थोड़ा सा 100 कदम से ज्यादा चल लूँ ना जरा तेज तेज तो मेरी चेस्ट पेन होती है, बैठा हुआ मैं ठीक हूँ, ठीक है। इस तरह का कोई लेवल ऑफ, मैं सीढ़ियां चढ़ दूँ ना जरा ज्यादा तो मेरी चेस्ट पेन होती है, वैसे ना चढ़ूँ तो ठीक हूँ, ठीक है। प्रिडिक्ट कर सकता है वो, क्योंकि बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है इस्कीमिया। It is associated with certain levels of exertion or increased demand, यानी कि टेकिकार्डिया के साथ, usually relieved by rest or by drugs such as nitroglycerin. पेशेंट खुद ही बताएगा कि मैं तो इधर आराम से बैठ जाऊं तो वो ठीक हो जाता है। और हमारे यहाँ क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन हर किस्म की हम खरीद सकते हैं, वी आर अ फ्री कंट्री, हम मर्जी का एंटीबायोटिक, मर्जी की दवाई, मर्जी का सब कुछ खरीद सकते हैं, मर्जी का स्लीपिंग पिल, सब कुछ हम अपनी मर्जी की ले सकते हैं इस मुल्क में। तो ये जब जाते हैं केमिस्ट के पास ही चले जाते हैं क्योंकि उसको भी डॉक्टर समझते हैं, तो वो कहेगा जी ये ज़ुबान की गोली रख लिया, तो आपको बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के बताएगा जी मैं ज़ुबान की गोली रखता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे अभी तक वो टिपिकल या स्टेबल एंजाइना की फेज में, क्योंकि स्टेनोसिस अभी क्रिटिकल हुआ है। उससे आगे जब बात बढ़ती है और हमने कहा था 90% से ऊपर होना शुरू हो जाए तो वो एक अनस्टेबल एंजाइना हो जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेसेंडो एंजाइना, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। Characterized by increasingly frequent pain precipitated by progressively less exertion or even occurring at rest. पेशेंट अब कहेगा कि जी पहले तो चलने से होता था, मुझे बैठे बैठे भी दर्द होता है, और बहुत पहले थोड़ा होता था अब ज्यादा होता है, ठीक है। और नाउ दिस इज ऑफन फॉलोड बाय एन एमआई। जब ऑक्लूजन 90% हो गई, जिस वक्त बाकी का 10% बंद हुआ, तो वो एमआई के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। इस पेशेंट को आपने बहुत केयरफुली एक्सप्लेन करके ऑन बोर्ड लेना है, ठीक है। दवाई दे के या टाल के घर नहीं भेजना। 70% वाले को भी जाहिर है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इज सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, ठीक है।
Then there's a third type of angina जो हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं, Prinzmental या angiospastic या variant, ये तीनों एक ही के नाम है, which occurs at rest and caused by an coronary artery spasm. ठीक है, this is not a fixed occlusion, होता अमूमन एथ्रोस्क्लेरोटिक साइट पे है, लेकिन वो थोड़ी होती है, स्पैज्म से ये प्रेसिपिटेट होता है और फिर रिलीव हो जाता है. It responds promptly to vasodilators such as nitroglycerin and calcium channel blockers, because remember this is not a fixed occlusion. Okay, moving on to myocardial infarction. Again a different color transparency, so pay attention please. Also commonly referred to as a heart attack. ये जो टैक लोग कहते हैं टैक हो गया, वो this is what they are referring to a myocardial infarction. ठीक है, there's necrosis of heart muscle. ठीक है, this is what differentiates it from angina resulting from ischemia. Ischemia is now enough to kill off cardiomyocytes. The vast majority we have discussed are going to be by acute coronary artery thrombosis. ठीक है, rarely due to spasm की वजह से भी पास होगा. ठीक है, sudden shock मिला, एथ्रोस्क्लेरोसिस के ऊपर से स्पैज्म हो गया, या एम्बोलाइजेशन फ्रॉम न्यूरल थ्रोम्बाई, या वेल्व्स के ऊपर वेजिटेशंस बनी हुई थी वो आगे जाके ब्लॉक कर गई, वेस्कुलाइटिस हो गया, एसएलई, ये माइनर कॉजेज हैं. यूजुअली फॉर 90 to 95% केसेस एथ्रोस्क्लेरोसिस विद सुपर एडेड थ्रोम्बोसिस. इसलिए इसको बाद का थ्रोम्बोसिस भी कहते थे ना, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का लफ्ज बहुत सिनोनिमस विद एमआई पहले. What is the myocardial response to ischemia? Early changes are potentially reversible. अब we are interested to know that duration कि कब तक मरीज आपके पास आ जाए और आप उसका थ्रोम्बोलाइसिस करवा दो, उसका थ्रोम्बस जो है डिसॉल्व करा दो, तो पेशेंट बिल्कुल गुड एज न्यू हो सके. We are interested in that time period. Severe ischemia lasting at least 20 to 40 minutes causes irreversible damage and myocyte death. ठीक है, 20 to 40 minutes तक ischemia रहे तो myocyte death शुरू होती है. अगर पेशेंट विदिन मिनट्स प्रेजेंट कर जाए और आप उसकी थ्रोम्बोलाइसिस कर सको तो वो किसी बड़े स्कार से बच सकता है. अब this duration is critical. This is often asked in the exam and unfortunately it is one of the other glitches that we see in Robbins. ठीक है, जिसमें मैंने कहा था बहुत कम है. Robbins is a great book, लेकिन जाहिर है कि वो रिसर्च बेस्ड है ना, रेफरेंस्ड बुक है, तो डिफरेंट रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं, तो ड्यूरेशन थोड़ी सी वेरिएबल दी हुई है. तो आप इन 2-3 जगह पे मैं दिखाती हूँ आपको, 2-3 तरह दी हुई है, आप जौन सी भी याद कर लो. यहाँ क्योंकि जो टॉपिक के अंदर हमें उन्होंने 20 to 40 मिनट्स वहां लिखा है, तो इस जगह मैंने 20 to 40 ही इंक्लूड किए हैं. इफ यू ओपन पेज नंबर 390 ऑफ द एडिशन दैट आई हैव, ये हम जो कार्डियक रेनआउट की हम बात कर रहे थे, वहां पे वो दे रहे हैं रिमेंबर 20 to 30 मिनट्स. ठीक है, 20 to 30 दिया है यहाँ. जिस जगह हम अभी पढ़ रहे हैं, ये पेज 411 है शायद, ये 20 to 40 मिनट्स दे रहा है, और उसी की समरी में ये 30 to 40 मिनट्स दे रहा है. माइनर सा फर्क है, बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं. आप इनमें से कुछ भी बोल दो, इनसे कुछ भी चलेगा. ठीक है, बेसिकली 20 to 40, 30 to 40, 20 to 30 कुछ भी बोल दो चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बोलना, इसके राउंड अबाउट ही बोलना. ठीक है, हाफ आवर के अराउंड ही रहना. Be very clear on this time. This is important. This is time for given to us for intervention. इसलिए ये जो है ना, एम्बुलेंस सर्विस अगर अच्छी है, पेशेंट के फोन आके हॉस्पिटल पहुंचने में तो यकीनन उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर एम्बुलेंस वाले हमारे अच्छे ट्रेंड हो, 1122 जैसे है फॉर एग्जांपल, तो वो एट साइट उसको अगर थ्रोम्बोलाइसिस का इंजेक्शन दे दे तो वो एमआई से बच सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, इफ दिस ग्लिच लीव्स यू स्टन्ड, तो अभी हम उसके रिलेटेड एक टॉपिक देखने लगे हैं. Myocardium can also be stunned. What is a stunned myocardium? ठीक है, a myocardium is profoundly dysfunctional for at least several days. जब उसको इन्फेक्शन हो ना, तो कुछ दिन तक तो वो इम्बैलेंस में चली जाती है और डिसफंक्शनल रहती है. ठीक है, तो रिमेंबर पेशेंट को एमआई के वक्त जितना डिसफंक्शन है वो जरूरी नहीं कि आगे कंटिन्यू करें. ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय persistent abnormalities in cellular biochemistry that result in a non-contractile state. इसलिए एमआई के बाद पेशेंट को आपको देखें ना, रेस्ट पे रखते हैं, बेड रेस्ट पे रखते हैं, क्योंकि भी एक तो डैमेज हुआ है, ऊपर से मायोकार्डियम स्टन्ड है. हम उसको रेस्ट देंगे तो वो सारा एडिमा वगैरह उतरेगा, कोलैटरल्स डेवलप होंगे, तो वो थोड़ा सा उससे ऊपर आएगा. तो रिमेंबर कि फर्स्ट डे पे जो पेशेंट को डैमेज है वो बाद में नहीं रहेगा. पेशेंट को हमने तसल्ली देनी है कि आज जितना आपको है अब ये बेहतर हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज द मायोकार्डियम इज स्टन्ड राइट नाउ. Now, what are the types of infarct? एक बच्चों transmural होगा, the entire wall is involved, उसमें ST elevation आएगी. अब मैं जरा स्पीड पकड़ी हुई, आपके रॉबिन्स में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, you will have no worries.
एक में सिर्फ सब एंडोकार्डियल टिश्यू इन्वॉल्व होगा क्योंकि वो ज्यादा प्रोन है, कॉन्ट्रैक्शन से भी उस पे उसकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होती है। इसमें एसटी एलिवेशन नहीं आती, ये नॉन एसटी एलिवेशन है। ट्रांसम्यूरल को स्टेमी कहते हैं, इसको नॉन स्टेमी कहते हैं। एसटी एलिवेशन से है, नॉन स्टेमी एमआई। And sometimes people can have microscopic infarcts in the setting of small vessel occlusion, जो हमने chronic के उसमें पढ़ा था। What is a widow maker? अगर बड़ा वेसल ब्लॉक हो जाए, लेफ्ट मेन कोरोनरी अगर किसी की ब्लॉक हो जाए, तो रिमेंबर उसी से लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ने निकलना है, उसी से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ने निकलना है, तो बहुत बड़ा एरिया जो है ना डैमेज हो जाएगा। तो इट इज मोर लाइकली टू किल अ पर्सन। मेल्स में ज्यादा होता है तो इसको विडो मेकर का नाम दिया जाता है, ठीक है, कि इंसान मर जाएगा आदमी और उसकी वाइफ विडो हो जाएगी क्योंकि बड़ा ऑक्लूजन है, पीछे बहुत प्रोक्सिमल पे हो गया ना, तो बहुत बड़ा एरिया अफेक्ट होगा, इसलिए इट्स कॉल्ड अ विडो मेकर। नाउ व्हाट विल इट लुक लाइक? ये एक इम्पॉर्टेंट वाइवा में बहुत उसमें आता है क्वेश्चन, और एमसीक्यूज में भी, कि एमआई जो होता है ना बच्चों, हमें पास को ऑटोप्सी पे देना होता है, तो हाउ टू टेल, बिकॉज बाद में तो ऑटोप्सी पे तो हर चीज नेक्रोज हो चुकी है। तो ये एक केमिकल है जो हम लगाते हैं तो एरिया ऑफ इन्फार्क्ट वाजे हो जाता है, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। रिमेंबर दिस, अगर इसका वर्ड याद आए तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? यू लुकिंग फॉर एन इन्फार्क्ट। माइक्रोस्कोपिकली ये बताया हुआ है रॉबिन्स में। देन वी कम टू द टेबल दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल अलोंग, जिसमें मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा पूछी थी। इसमें मिनट्स और घंटों और दिनों के हिसाब से बताया हुआ और बड़ा अच्छा बताया हुआ, उसमें से आपने देख लिया 1000 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आए, तो आपने इसको बहुत अच्छा देखना है। करंटली वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस, सो इफ यू एग्री वी विल स्किप इट। ठीक, आप पढ़ लोगे बाद में, प्रॉमिस? ओके, लेट इट गो। Moving on to the clinical features. The picture in the background is showing you a typical chest pain. There's severe crushing substernal chest pain or pressure that can radiate to the neck, jaw, epigastrium, or left arm. It typically lasts several minutes, longer than the typical angina attack, and not relieved by nitroglycerin or rest. Patient कहेगा जी पहले chest pain होता था, मैं गोली रखता था, दवा पीते मैं ठीक हो जाता, इस बार ठीक नहीं हो रहा, बहुत severe pain है, बहुत severe pain है, and sometimes may be entirely asymptomatic. ठीक है, ज्यादातर डायबिटीज वालों को, उनको न्यूरोपैथी हुई होती है, तो ये उनको बात का पेन ही नहीं होता है, ठीक है, तो आपने बाकी फीचर्स को भी ध्यान में रखना है। What are they? Pulse is going to be rapid and weak. Patient is going to break out into sweat. बहुत पसीना आ रहा होगा मरीज को, गर्मी है लेकिन उससे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होगा, उल्टी कर सकता है मरीज, सांस चढ़ा हुआ होगा, मैसिव एमआई में शॉक में चला जाएगा। ठीक है, अब डायग्नोसिस हमने जो करना है वो 3 चीजों पे बेस करना है। फर्स्ट इज द क्लिनिकल हिस्ट्री, जो आपने बहुत ध्यान से लेनी है, अपने रिफ्लेक्सेस को शार्पन करना है। देन ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज, जिसमें एसटी सेगमेंट चेंजेस हैं, टी वेव इन्वर्शन है, और आखिर में क्यू वेव्स आ जाती हैं क्रॉनिक में। देन समटाइम्स पेशेंट कैन हैव एरिथमियाज एज वेल। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशंस में कार्डियक एंजाइम्स जिसको कहते थे, क्योंकि शुरू में एंजाइम्स ही डिस्कवर हुए थे जो कार्डियोमायोसाइट डेथ से सर्कुलेशन में आते थे। नाउ वी हैव होस्ट ऑफ अदर केमिकल। अब टॉप पे कार्डियक ट्रोपोनिन्स है, या इसी में अभी 6 महीने रह के आई हूँ, वो सारा कुछ ट्रोपोनिन्स पे बेस करते हैं। ट्रोपोनिन टी और आई 2 होते हैं, सीकेएमबी, एलडीएच और मायोग्लोबिन में हेल्प। ठीक है, इनकी ड्यूरेशन आप देख लेना। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? सबसे पहले डेंजरस कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन, जिससे पेशेंट शॉक में जा सकता है। ठीक है, और रेयरर बट मोर ड्रामेटिक एरिथमिया में जाए पेशेंट, या तो फ्लटरिंग और पैल्पिटेशन की कंप्लेंट करेगा, या सडन कार्डियक डेथ में भी जा सकता है। ठीक है, एमआई हुआ और कोई मर गया, वो इस तरह मरते हैं बिकॉज ऑफ एरिथमिया। ठीक है, समटाइम्स यू कैन हैव पेपिलरी मसल डिसफंक्शन, राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन से वीक वॉल हो जाएगी, चेंबर डायलेट हो सकता है, वॉल में थ्रोम्बस बन सकता है, वॉल में एन्यूरिज्म बन सकता है जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है जो हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे, प्रोग्रेसिव लेट हार्ट फेलियर, और पेशेंट कैन डेवलप कार्डियक न्यूरोसिस। ये हम आखिरी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे बिकॉज वो हमारा छोटा है, 6th लेक्चर। रिमेंबर, वेरी रेयरली माय हार्ट कैन रप्चर, वो जो मेरा दिल फट गया वाली है ना मुहावरा, इट इज नॉट टोटली इनकरेक्ट। People can have a ruptured heart. Risk factors are age more than 60, anterior and lateral wall infarctions. Females are more prone to have this. Lack of ventricular hypertrophy, जो hypertensive में अक्सर हो जाती है, in a way that is protective against a rupture. और first MI पे ये ज्यादा होता है। ठीक है, then chronic heart disease, तो इस्कीमिया के साथ हमने डिस्कस कर ली हुई है, लेस वेंट्रिकुलर डायलिटेशन एंड hypertrophy,
और इसमें स्कारिंग एरियाज आएंगे, जैसे कि एक ऑटोप्सी का सवाल यूएचएस में आया हुआ था। वीडियो हम अगली दफा देख लेंगे, ठीक है जी। नाउ यू नो अबाउट दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड लैब वैल्यूएशन, morphological changes and complications, stenosis and duration. आप देख लो उस टेबल में से जो हमने नहीं डिस्कस किया, बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। Questions you are welcome to leave with your GR. And with this, we come to the end. Thank you for your time and attention. And please keep taking care. We are praying for you and you pray for us as well. Thank you so much. Thank you, ma'am.